Hello everyone, welcome to Bevkuf IS. Let's head on towards our another lecture of agriculture, and this is lecture number 4 on sustainable agriculture. So what we're gonna do in this is that we'll do the reverse engineering in this like we did in all the other lectures. So we'll look into the questions from the past chronologically, and we'll head on towards the present. In 1981, clodding. Plow was asked. 1981 again. Black rust, steam rust of wheat, loose smooth of wheat, smooth, green ear. Counterbunding. We have seen it. We have seen it in the another lectures also before. So you can go and check it. This is a repetition. Mixed farming we have seen repetitive. Crop rotation we have seen repetitive. Mixed farming again repetitive from here and at another place also. That's mixed cropping, repetitive. Honeybees, spiders, wasps, kites, pest control we have seen. Pesticide and insecticides and all these, pests and these insects. So this is also repetitive. Biocides, sustainable agriculture, super phosphate. We have seen phosphate and this is super phosphate. Greenhouse farming, high yield varieties, shift cultivation, organic farming. We have seen these. Few of these are repetitive. Sustainable sugarcane initiative, sugarcane, drip irrigation, intercropping. Full repetition is there, right? Gypsum, repetition, water conservation in agriculture, repetitive. Again, 2018, minimum tillage, crop sequencing, crop rotation, conservation agriculture, repetition. Eco-friendly agriculture, crop diversification, legumes, intensification, vertical farming. Three of these are repetitive in nature, right? ये आ चुका है पहले भी. Zero tillage again, repetitive. Soil carbon sequestration, paddy cultivation. Three of these are repetitive. जो हमने पास में लेक्चर्स करें आप उसमें जाके चेक करिए, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी. सो वील अगेन डू दीज ओवर हेयर. तो काफ़ी चीज़ें तो हमें पहले ही हमने कर लिया, उसका ही रिपीटेटिव है. बायोचार, वर्टिकल फार्मिंग अगेन आ गया. नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स, बायो का पार्ट है. एनवायरनमेंट में भी हम देखेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो ये रिपीटेटिव ही है, कई बार पूछा जा चुका है. मोनोकल्चर हो चुका है, पर्मा कल्चर हो चुका है, कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग विल सी. टू ऑफ दीज आर रिपीटेटिव इन नेचर. स्मार्ट एग्रीकल्चर, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, क्लाइमेट चेंज एग्री, ये हम देख लेंगे सारा. 2022 में another question, anthropogenic source of methane, anthropogenic source of nitrous oxide, NOx, मीथेन, GHG तो है ग्रीन हाउस गैसेज एक तरीके से ही है, और ये नाइट्रस ऑक्साइड एसिड रेंज में वर्क करता है. तो उसके कॉजेज क्या है? राइस, कॉटन, शुगर केन, वीट. ये तो फुल रिपीटेटिव है, रिपीटेशन आया इसका. सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन सी, रिपीटेटिव. हमने पहले करा था आई थिंक ये वाला क्वेश्चन दूसरे लेक्चर में, फिर से यहाँ पे कर लेंगे. 2023 में स्मॉल फार्मर्स लार्ज फील्ड, ठीक है. कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है? कॉपरेट फार्मिंग क्या है? सिंपल है बाय विद नेम्स. इसमें तो रिपीटेशन हो भी ना हो, नॉर्मली नेम से ही समझ में आ जा रहा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता. कुछ चीज़ें बहुत बेसिक हैं, वो नेम से ही समझ में आ जाती हैं. सो लेट्स सी विच पेज नंबर 162. हेड ऑन टुवर्ड्स 162. I think this is the one, 162. Yeah. So in 1981, question was asked, why the Indian farmers plow their fields during the time interval between two crops? तो जब टू क्रॉप्स होती हैं उनके बीच के टाइम में प्लो क्यों करते हैं? बताओ क्यों करते होंगे प्लो? मान लीजिए आपने क्रॉप, एक क्रॉप हटाया और दूसरी क्रॉप सो होनी है, तो बीच में क्यों करेंगे, क्या करेंगे ऐसा? भाई क्यों उसको प्लो से क्लॉड करते हैं? क्लॉड बोलते हैं उसको, मतलब क्लॉड होने से रोकने के लिए. क्लॉड नहीं बोलते. जो बुआई करते हैं, वो बुआई से पहले जो रहता है ना, प्लो से अच्छे से उसको खोदना और प्रॉपरली प्लोइंग करना उसकी क्यों करते हैं? जिससे क्लॉड ना हुए.
क्लॉडिंग ना हो। क्लॉडिंग का मतलब फॉर एग्जांपल कैसे समझाऊं कि जैसे वीड की ग्रोथ हो गई, या सॉइल अपना मॉइस्चर ना खो दे कहीं, या कुछ दिक्कत ना हो, या इस इन चीज सब चीज़ों के लिए। ठीक है, देखो यहाँ दे रखा है, टू क्रॉप्स टू अवॉइड द ग्रोथ ऑफ वीड्स, टू लूजन द सॉइल एंड फॉर सोइंग सीड्स फॉर नेक्स्ट क्रॉप। ठीक है, प्लोइंग द फील्ड अलाउ ऑल्सो प्रिवेंट्स क्लॉडिंग। द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग। ठीक है, टिलिंग और प्लोइंग एक ही चीज़ है। लूज करना, सॉइल को टर्न करना, वापस से रीयूज करने के लिए बनाना, उसके न्यूट्रिएंट्स को वापस लाना, बाकी सारी चीज़ें, अगर कोई कमी है तो डालना उसके अंदर, वो सब प्लोइंग और टिलिंग में हो जाता है। ठीक है, सो तो दोनों टाइम के बीच में प्लो क्यों करते हैं, जिससे टिलेज ना आए या फिर क्लोइंग क्लॉडिंग ना हो। टिलेज और क्लॉडिंग सेम सिनोनिम है, तो क्लॉडिंग दिख गया आपको, आंसर इज डी। इस ड्रॉट को स्केप करना है, इंक्रीज द पोरोसिटी ऑफ द सॉइल, नहीं, इन ऑर्डर टू कीप द सॉइल लूज फॉर फर्दर, हाँ थोड़ा सा इसका कह सकते हैं हम ए, बट बेस्ट आंसर इज दिस, क्लॉडिंग। ठीक है, क्लॉडिंग से बचाने के लिए। अनदर क्वेश्चन 1981, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन वीट डिसीज इन इंडिया। याद रखना है इसको, रस्ट। ठीक है, ब्लैक रस्ट और स्टेम रस्ट बोलते हैं, वीट के अंदर लगता है, सबसे ज्यादा कॉमन है। 1981 में तो था, अभी चेक कर लेना एक बार गूगल करके है कि नहीं। कॉन्टोर बंडिंग इज यूज टू ये कराया था कल, देख लीजिए, हिली टेरेन है, वहां पे टेरेस कल्टीवेशन हो रहा है, तो टेरेस के चारों तरफ थोड़े 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 छोटे छोटे पत्थर लगा दिए, या किसी चीज से रोकने के लिए लगा दिए, कल को वाटर आएगा तो वहां थोड़ा सा रुके, बारिश हुई तो यहाँ रोक लेगा, सॉइल को रन ऑफ करने से भी रोकेगा और थोड़ा वाटर भी रोकेगा। उससे क्या होगा, बेटर क्वालिटी आएगी प्लांट्स की, और अच्छे से होंगे। ठीक है, देखो, प्रिजर्व रिसोर्सेज एंड रिड्यूस इरोजन। ठीक है, करवाया था पहले ये मैंने, लास्ट लेक्चर में जाओ वहाँ मिलेगा। तो क्या है ये, हिली एरिया ही तो है, वहीं पे तो रोक रहा है, तो इरोजन से बच
Another question. What is are the advantage of zero tillage in agriculture? Sowing of wheat is possible without burning the residue of the previous crop. Without the need of nursery of rice saplings, direct planting of paddy seeds in the wet soil is possible. Carbon sequestration in the soil is possible. ये बहुत सिंपल है, देखो जीरो टिलेज है, हम टिलेज नहीं निकाल रहे, तो कार्बन सिक्वेंस्ट्रेशन तो हमारा हो ही रहा है, और राइस सैपलिंग की नर्सरी नहीं बनाने की जरूरत है, डायरेक्ट डायरेक्ट प्लांटिंग कर देंगे हम पैडी सीड्स की वेट सॉइल के अंदर, ठीक है, पॉसिबल हो जाएगा. सोइंग ऑफ वीट इज पॉसिबल विदाउट बर्निंग द रेसिड्यू, ठीक है, टिलेज ही नहीं है, हम जीरो टिलेज कर रहे हैं, तो हम उसको खाड़ेंगे तो जलाने की जरूरत क्या है, वहां पे जलाने की जरूरत भी नहीं है. डी इज द आंसर 1, 2 एंड 3. Another question. What is the use of biochar in farming? Biochar can be used as a part of, देखो can be used. Made by burning organic material from agriculture and forestry waste, also called biomass, in controlled process called pyrolysis. Got it? The extremely porous nature of biochar is found to be effective at retaining both water and water soluble nutrients. ठीक है? Its presence in the earth can improve water quality, increase soil fertility, raise agriculture productivity and reduce presence on. आप बायोचार गूगल पे जाना और देखना क्या होता है, आपको वैसे ही याद हो जाएगा. ठीक है. ऑर्गेनिक मटेरियल को जब बंद कर देते हैं ना एग्रीकल्चर के लिए फॉरेस्ट्री में, या फिर फॉरेस्ट्री वेस्ट को पायरोलाइसिस के थ्रू, तो बायोचार बन जाता है. वो क्या है, वो बहुत इफेक्टिव होता है क्या, वाटर को और वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स को रिटेन करने में, ठीक है, उनको होल्ड करने में. उसके प्रेजेंस से वाटर क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है, सॉइल फर्टिलिटी अच्छी हो जाती है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी अच्छी हो जाती है, प्रेशर और ऑन ओल्ड ग्रो एंड रिड्यूस प्रेशर रिड्यूस करता है ओल्ड ग्रोन फॉरेस्ट में. बायोचार के ठीक है, इट्स नॉट रिक्वायर्ड. Another question. How is permaculture farming different from conventional chemical farming? यानी कुछ पॉजिटिव है इस नेगेटिव के मुकाबले, तभी तो वो बेटर है, ऐसा समझो, इस तरीके से सोचो. कन्वेंशनल फार्मिंग जो थी, उस केमिकल फार्मिंग जो थी, उससे पर्माकल्चर बेटर क्यों है, तो देखो पॉजिटिव जहाँ पे दिखे वो दे आर द राइट आंसर्स. पर्माकल्चर फार्मिंग डिस्कोर्सेज monocultural practices, but in conventional chemical farming monoculture practices are predominant. ठीक है, थोड़ा डिस्कोर्स कर रहा है वो, बट उसमें प्रीडोमिनेंट था, तो ये इसका डिफरेंस बता रहा है. चलो अगला देखते हैं. कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग कैन कॉज एन इंक्रीज इन सॉइल सेलिनिटी, बट द अकरेंस ऑफ सच फिनोमेना इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन पर्माकल्चर फार्मिंग. गॉट इट. तो ये भी ठीक है, ये पॉजिटिव है, अच्छा है. सेकंड स्टेटमेंट तो होगा ही, तो सी तो नहीं होगा, 1 एंड 3 भी नहीं होगा. सेकंड दिख रहा है इस डी में और बी में, तो बी या डी में से कोई एक. कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग इज इजीली पॉसिबल इन सेमी एरिड रीजन्स, बट पर्माकल्चर फार्मिंग इज नॉट इजीली पॉसिबल इन सच रीजन्स. क्या सेमी एरिड रीजन्स पे कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग ज़्यादा ईजी है, इजीली पॉसिबल है? कुछ भी बोल रहा है ना ये. सेमी एरिड रीजन्स पे कितना दिक्कत हो जाती है, समझ रहे हो, तो 3 तो नहीं होगा. Practice of mulching is very important in permaculture farming, but not easily so in conventional chemical farming. 3 नहीं होगा, तो 1 to 4 is the answer even without knowing the things. Got it? अब आपको पता है permaculture क्या है, तो आप वैसे करो नॉलेज के बेसिस पे. तो जानने के लिए अभी permaculture will understand. Permaculture क्या है? The word permaculture was coined by 2 Australians named Bill and David during 1970. It stands for permanent agriculture. Permanent culture, that is permanent agriculture, that is permaculture, and aims to create sustainable habits by integrating with ecology, landscape and agroforestry, etc.
पर्माकल्चर वर्सेस कन्वेंशनल फार्मिंग देख लो. Permaculture involves the growing of diverse mixtures of perennial and annual plants that provide food for one another, while conventional farming has monoculture practices. Conventional farming uses chemical fertilizer and pesticides, which can result in soil salinization. But since permaculture does not use pesticides and chemicals, there is no problem of salinization. Permaculture is adaptable to various conditions due to its integrative approach, but conventional farming has a fixed set of standards, making farming difficult in semi-arid and arid regions. Got it? Mulching helps in preserving soil moisture, prevents soil erosion, and enhancing soil quality, which makes it an important practice in permaculture, but it is not much helpful in conventional agriculture. ठीक है. I hope you guys are getting it. सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का ही पार्ट है परमानेंट परमाकल्चर. ठीक है. इकोलॉजी, लैंडस्केप, एग्रो फॉरेस्ट्री, ये सब लगाने के बाद यूज किया जाता है. अनदर क्वेश्चन. In context of Indian preparation for climate smart agriculture, consider the following. Climate smart village approach in India is a part of project led by the climate change agriculture CCAFS food security and international research program. ठीक है. The project of CCAFS is carried out under Conservation Group of International Agriculture Research CGIAR headquarters in France. The International Crop Research Institute for Semi-Arid Tropics is in India is one of the CGIAR's research centers. भाई CGIAR क्या है देख लो यार एक बार, क्योंकि ये आना थोड़ा सा this is something which is not commonly came up until and unless कुछ ना हुआ हो. तो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर क्या है पहले ये देख लेते हैं. क्लाइमेट फ्रेंडली एग्रीकल्चर जो है क्लाइमेट स्मार्ट, इट इज़ एन इंटीग्रेटेड अप्रोच टू मैनेजिंग लैंडस्केप, cropland, livestock, forest and fisheries that addresses the interlinked challenges of food security and accelerating climate change. Climate change को ध्यान में रखते हुए स्मार्टली एग्रीकल्चर करना, that is what climate smart agriculture is. 3 pillars है इसके: increasing agriculture productivity and incomes, adapting and building resilience to climate change, and reducing or removing greenhouse gas emissions from agriculture. ठीक है. It is an approach that helps guide actions to transform agri-food systems towards green and climate-resilient practices. ठीक है. Climate Change, Agriculture and Food Security (CCAFS), ICRI SET, International Crop Research Institute for Semi-Arid Tropics, and Consultative Group on International Agriculture Research. इनको इतना जानने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये बहुत मतलब आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है जो यूपीएससी जनरली नहीं सीख करता है. वो 100 क्वेश्चंस में कुछ 1-2 क्वेश्चंस जो बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स लगते हैं, जो नहीं करने चाहिए, वही उनमें से यही है. कर भी लोगे तो नेगेटिव में जाओगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस मत अटेम्प्ट करना. मैं सिर्फ यहाँ आपको क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूँ, मैं सिखा भी रहा हूँ कि भाई हर क्वेश्चन को नहीं करने लग जाना है. दिख रहा है सामने से कि गलत हो सकता है तो छोड़ दो उसे. ठीक है. इतना याद करने की ज़रूरत भी नहीं है आपको. अपनी कट ऑफ क्लियर करनी है, ना कि इसे भी क्लियर करना है. तो ऐसे को छोड़ देना है, सबसे बेस्ट है. आई होप यू गाइस आर गेटिंग इट. अनदर क्वेश्चन. Among the following crops, which one is the most important anthropogenic source of both methane and nitrous oxide? तो मीथेन का बोल रहा है वो, और नाइट्रस नॉक्स का बोल रहा है, नाइट्रस ऑक्साइड का. कि एंथ्रोपोजेनिक सोर्स क्या है. एंथ्रोपोजेनिक का मतलब ह्यूमन मेड सोर्सेज, ह्यूमन द्वारा किए गए. कौन सा है इनमें से सबसे ज़्यादा? मीथेन सबसे ज़्यादा किस पे निकलता है नाइट्रस ऑक्साइड के साथ? कॉटन में, राइस में, शुगर केन में या वीट में? हमेशा याद रखना राइस है वो. हमेशा इसको याद रखना, हमेशा राइस में ही सबसे ज़्यादा मीथेन या नाइट्रस ऑक्साइड निकलता है. क्यों? पानी के नीचे दबा रहता है राइस के सैपलिंग्स. प्लांट वहीं से ग्रो करेगा तो नीचे होगा ना जो हो रहा होगा. गैसेज नीचे बन रही हैं. गॉट इट. तो मीथेन भी बनेगी, नाइट्रस ऑक्साइड भी बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगी. ग्रीन हाउस गैसेज तो बड़े आराम से बनती हैं इसके अंदर. ठीक. और ये 1.5% है टोटल ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस का. ठीक है. और मीथेन क्या है? 30% 30 टाइम्स मोर पोटेंट एज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ज़्यादा खतरनाक है.
30 टाइम्स पोटेंसी है उसकी ज़्यादा। अनदर क्वेश्चन, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, राइस को इंटेंसिफाई करने वाला सिस्टम ऑफ कल्टिवेशन इन विच ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग ऑफ फील्ड्स इज प्रैक्ट। अच्छा देखो, अभी हमने देखा ना वेटिंग हो जाती है तो फिर मीथेन और ये सब रिलीज करती है, तो यहाँ क्या है, राइस इंटेंसिफिकेशन का एक नया सिस्टम है जिसके अंदर ऑल्टरनेट वेटिंग हो रही है और ड्राइंग हो रही है राइस फील्ड की, यानी वेट कर रहे हैं फिर ड्राई कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं ड्राई कर रहे हैं, जिससे क्या बचेगा, पानी भरा रहेगा तो मीथेन और नॉक्स बनेंगी, तो ग्रीन हाउस गैसेस कितनी बन रही हैं, तो वेटिंग और ड्राइंग करेंगे तो ग्रीन हाउस गैसेस तो बहुत कम हो जाएंगी क्योंकि सूखने दे रहे हैं उसको, फिर आराम से पानी भर रहे हैं फिर सूख जाने दे रहे हैं, लगातार पानी नहीं चला रहे। ट्यूबवेल से लगातार पानी आता रहता है ना, तो वो लगातार नहीं चला रहे, उसको वेट होने दे रहे हैं, वेट करके छोड़ दे रहे हैं सूखने के लिए कुछ दिनों के लिए, फिर सूख जा रहा है फिर थोड़ा वेट कर दे रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, समझ रहे हो, ये क्वेश्चन है। तो रिड्यूस सीड रिक्वायरमेंट, रिड्यूस मीथेन प्रोडक्शन, देखो आ गया मीथेन प्रोडक्शन कम, यस 2 तो करेक्ट है ही है, 2 सब में इसमें नहीं आ रहा, ये हट गया। रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, यस ट्यूबवेल कम चल रहा है, बताया था बिजली से तो चलता है, हाथ से थोड़ी चलाएंगे उसको, एनर्जी से चल रहा है, एंड ऑफ द डे इलेक्ट्रिसिटी इज द एनर्जी, तो 3 भी सही होगा तो ए भी गया, या तो 2 3 है या 1 2 3। अब देखो सीड रिक्वायरमेंट रिड्यूस कैसे, भाई वेटिंग हो जा रही है, उसको धूप मिल रही है, सीड को कोई सीड बच भी गया होगा उसको धूप लगेगी, थोड़ा बहुत हो सकता है उग जाए, समझ रहे हो, उग जाएगा वो, तो सीड की रिक्वायरमेंट कम होगी। दूसरी चीज़ पानी भरा होता है तो क्रेन्स आ जाती हैं उसको खाने के लिए, बर्ड्स वगैरह चोंच मार मार के अंदर से खाती हैं निकाल निकाल के ईजीली, बट जब सूखेगा तो नीचे भी चला जाएगा सीड और टाइट भी हो जाएगा लैंड के अंदर, तो ज़रूरी नहीं चोंच मार के निकाल पाया, बेसिक सोचना है ज़्यादा नहीं, तो पॉजिटिव ही है, सीड रिक्वायरमेंट रिड्यूस कर देगा, यस, तो 1 2 एंड 3 इज द आंसर, डी, ठीक है। अनदर क्वेश्चन, which of the following best describes the concept of small farmer large field। 2023 का क्वेश्चन है, खुद से सॉल्व करो, बहुत सिंपल है, स्मॉल फार्मर्स हैं, लार्ज फील्ड है, ठीक है, तो छोटे छोटे फार्मर जुड़े और उन्होंने, उनके पास छोटा छोटा लैंड था, स्मॉल लैंड्स, स्मॉल फार्मर्स मेक्स बिकम्स लार्ज वन फार्मर फैमिली विद लार्ज फील्ड, इस तरीके से सोचो, ठीक है। 20 का आंसर अपने आप आ जाएगा। मैनी मार्जिनल फार्मर्स इन एन एरिया ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू अ ग्रुप एंड सिंक्रोनाइज एंड हार्मोनाइज सेलेक्टेड एग्रीकल्चर। देखो सिंक्रोनाइज एंड हार्मोनाइज कितना पॉजिटिव स्टेटमेंट है, बाकी स्टेटमेंट को चेक करना, इतना मज़ा नहीं आएगा उनको पढ़ने में, ये ऑफिशियल टाइप ऐसा नहीं लग रहा आईएएस ने बोला हुआ है स्टेटमेंट, लेटर में लिख रहा हो प्राइम मिनिस्टर को, एक आईएएस या फिर अपने ऊपर वाले अधिकारियों को, उस तरीके से थोड़ा सा स्टेटमेंट है ना बी वाला, तो ऐसे सोच के टिक करना है कि बेटर स्टेटमेंट ज़्यादा अच्छा क्या है, आप एक ऑफिशियल लेटर में कैसे स्टेटमेंट लिखना पसंद करोगे, तो ऐसा लिखना पसंद करूँगा मैं, दिस इज़ द आंसर, गॉट इट। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, साइनिंग ऑफ।